algebraic equations and also in transcendental equations. Now, what are algebraic equations and what are transcendental equations that you need to know? The equations of the form fx is equal to 0, x is some variable and fx is a function of x. So the equations of the form fx is equal to 0 are called algebraic when fx is purely a polynomial in x. Okay, and they are called transcendental if fx contains some other functions such as trigonometric, logarithmic, exponential, etc. As examples, you can take x cube minus 2x minus 1 is equal to 0. This is an algebraic equation because left hand side is a polynomial. While e to the power minus x is equal to sine x, this is a transcendental equation because it is containing exponential term and trigonometric term. That's why it is a transcendental equation. Now, sometimes a tricky question has been asked in the examination whether x minus pi is equal to 0. This is algebraic or transcendental. So you need to be very careful in noting down that x minus pi is equal to 0 is a transcendental equation. X minus pi is equal to 0 is a transcendental equation because pi is a transcendental number which cannot be the root of an algebraic equation. Transcendental number is that number which cannot be the root of an algebraic equation. Because if you take x minus pi is equal to 0 as an algebraic equation, the root of this equation is pi. So if this is an algebraic equation, then pi will be the root of an algebraic equation. But if pi cannot be the root of an algebraic equation, pi is a transcendental number. Okay. That's why x minus pi is equal to 0 will be a transcendental equation. This you always remember. Okay. Now, the proof that pi is a transcendental number is beyond the scope of your course. Okay. But if you are interested, you can refer to the book by Hardy and Wright, The Theory of Numbers, Introduction to the Theory of Numbers by Hardy and Wright. Okay. This is the same Hardy, G.H. Hardy, who called Ramanujan. And Ramanujan became famous because of Hardy, Professor Hardy, है ना? Hardy का नाम सुने हो तुम लोग? उन्हीं का बुक है. Yes, sir. हार्डी और राइट का बुक है थ्योरी ऑफ नंबर्स पे. वहां तुमको मिल जाएगा कि पाई जो है वो ट्रांसीडेंटल नंबर है. तो एक मजेदार चीज देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जैसे है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और पाई, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड पाई बोथ आर इरेशनल नंबर्स. ठीक है, बट स्क्वायर रूट ऑफ 2 is not a transcendental number because square root of 2 it can be the root of an algebraic equation. जैसे x square minus 2 is equal to 0. x square minus 2 is equal to 0. This is an algebraic equation. इसका रूट है प्लस एंड माइनस रूट 2. तो देखो रूट 2 जो है वो algebraic equation का रूट हो सकता है, लेकिन पाई का भी algebraic equation का रूट नहीं हो सकता है. इसलिए पाई ट्रांसीडेंटल नंबर है. ठीक है, तो रूट 2 और पाई दोनों ही रैशनल है. रूट 2 भी रैशनल है, पाई भी रैशनल है, लेकिन रूट 2 ट्रांसीडेंटल नहीं है. पाई जो है वो ट्रांसीडेंटल है. तो हमेशा याद रखो कि जितना भी ट्रांसीडेंटल नंबर है वो सभी इरेशनल है, लेकिन जितना इरेशनल नंबर है वो सभी ट्रांसीडेंटल नहीं है. एम आई क्लियर? इरेशनल नंबर अलजेब्रिक इक्वेशन का रूट हो सकता है, लेकिन ट्रांसीडेंटल नंबर अलजेब्रिक इक्वेशन का रूट नहीं हो सकता है. Am I clear or not? So transcendental numbers form a subclass of irrational numbers which cannot be the root of an algebraic equation. Is this point clear? Now we are starting the first method. सर पाई छोड़ के और भी कोई नंबर होता है? Transcendental. यस सर. E ओके.
ई जो है एक्सपोनेंशियल, ये तो इरेशनल ही है, इरेशनल तो नहीं है। यस सर। तो वो अलजेब्रिक इक्वेशन का रूट तो नहीं होगा ना। यस सर। नेट पे थोड़ा सा सर्च करके देखो। लेकिन ये सब का प्रूफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नाउ वी आर स्टार्टिंग बाइसेक्शन मेथड। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड फॉर सॉल्विंग अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ये दोनों में काम करता है, अलजेब्रिक भी सॉल्व हो सकता है, इससे ट्रांसेंडेंटल भी सॉल्व हो सकता है, और सिंपल मेथड है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। नाउ बाइसेक्शन मेथड इज बेस्ड ऑन intermediate value theorem. So what intermediate value theorem states is that if a function is continuous between a and b, and fa and fb are of opposite signs, then at least one root will exist between a and b. मतलब a to b अगर फंक्शन का साइन चेंज होता है तो एक रूट जो है, कम से कम एक रूट a और b के बीच जरूर लाई करेगा। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, और इसी पे बेस्ड है बाइसेक्शन मेथड। ओके, so bisection method is utilizing the intermediate value theorem, which states that for any function that is continuous between a and b, if fa, that is the value of the function at the point a, and fb, the value of the function at the point b, if they are of opposite signs, then at least one root will exist between a and b. Now the steps for bisection method are as follows. Find a and b such that fa into fb is less than 0. Now as our starting point or initial guess, we take x naught as the mean of a and b. Since the root lies between a and b, we take the mean of a and b, that is a plus b by 2, that we take as our initial guess. Okay, so this is step 2. Now in step 3, we will try to see whether the root is lying between x naught and a, or rather a and x naught, or whether it lies between x naught and b. Now how to check this? Acha, before that once we have set x naught is equal to a plus b by 2, we should see whether f of x naught is equal to 0, and if it is 0, we have already got the root, so no need to proceed any further. So we are assuming that fx naught is not equal to 0. So in that case, we have to see whether the root lies between a and x naught, or whether it lies between x naught and b. Now if it lies between a and x naught, then f of a into f of x naught must be equal to must be some negative number. So we check whether f of a into f of x naught is negative, and if that is the case, then we set x1 is equal to a plus x naught by 2. This will be our next approximation. Otherwise, if f of x naught into f of b is negative, then we set x1 as x naught plus b by 2 as our next approximation. So step 3 is clear to you? Step 3 is clear? किसी को कोई डाउट है? Yes sir. Yes. No sir. So we move to step 4. Step 4. तो मान लो step 3 में जो fa into fx naught is less than 0, ये कंडीशन फुलफिल हो गया, ठीक है। स्टेप 3 का जो ये वाला कंडीशन था, ये मान लो कि फुलफिल हो गया, और तुम x1 इज इक्वल टू a प्लस एक्स नॉट बाई 2 ये ले लिए, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? So consider the case that x1 is equal to a plus x0 by 2 in step 3.
So we are talking about step 4. Okay. Now suppose in step 3 we had x1 is equal to a plus x0 by 2. Then in step 4 what we will do? We will now see whether the root lies between a and x1 or whether it lies between x1 and x0. So accordingly we will check whether f of a into f of x1 is negative, and if that is the case then x2 will be a plus x1 by 2, or whether f of x1 into f of x0 is negative, in which case we will set x2 is equal to x1 plus x0 by 2. So this case occurs when in step 3 we had taken x1 is equal to a plus x0 by 2. तब स्टेप 4 में हम ये चीज करेंगे. अगर हम स्टेप 3 में x1 इज इक्वल टू x0 प्लस b बाई 2 लिए हुए हैं, ठीक है, अगर हम स्टेप 3 में x1 इज इक्वल टू x0 प्लस b बाई 2 लिए हुए हैं, तो हम स्टेप 4 में क्या करेंगे? सो ऑन द अदर हैंड, in case we had taken x1 is equal to x0 plus b by 2 in step 3, in that case we have to see whether f of x1 into f of x0 is negative or whether f of x1 into f of b is negative. If f of x1 into f of x0 is negative, then accordingly we will set x2 as x1 plus x0 by 2, and if f of x1 into f of b is negative, then accordingly we set x2 is equal to x1 plus b by 2. Is it clear? हम स्टेप 4 में क्या कर रहे हैं? सिंपल है. अगर हम स्टेप 3 में अगर हम रूट को x0 और a के बीच पाए होते स्टेप 3 में, तो अकॉर्डिंगली हम x1 इज इक्वल टू a प्लस x0 बाई 2 लिए लेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, है ना. बाइसेक्शन मेथड इसको बोलते ही है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं. जो दो वैल्यू के बीच में रूट है वो दोनों का मीन को ले रहा है, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है. तो अगर a और x0 के बीच में रूट है स्टेप 3 में, तो हम x1 को सेट किए हैं a प्लस x0 बाई 2, और अगर हम ऐसा सेट किए हैं, अगर हम x1 को a प्लस x0 बाई 2 सेट किए हैं, तो फिर अगर हम x1 को a प्लस x0 बाई 2 सेट किए हैं, तो अब हम देखेंगे कि रूट हमारा a और x1 के बीच में है कि x1 और x0 के बीच में है. तो कैसे देखेंगे? बिल्कुल उसी तरह से कि अगर a और x1 के बीच में है तो f ऑफ a इंटू f ऑफ x1 नेगेटिव होना चाहिए, और अगर x1 और x0 के बीच में है तो f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x0 वो नेगेटिव होना चाहिए. तो मान लो कि f ऑफ a इंटू f ऑफ x1 नेगेटिव आ गया, तो हम x2 को क्या लेंगे? x2 हो जाएगा a प्लस x1 बाई 2, और अगर f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x0 नेगेटिव आ गया, तो हम x2 को क्या लेंगे? x1 प्लस x0 बाई 2. क्लियर? ये तब हुआ जब हम स्टेप 3 में x1 को a प्लस x0 बाई 2 लिए हुए हैं. तब अगर हम स्टेप 3 में x1 को x0 प्लस b बाई 2 लिए हुए हैं, यानी कि स्टेप 3 में हम ये पाए हैं कि रूट हमारा x0 और b के बीच में है, तो उस केस में हम स्टेप 4 में क्या करेंगे कि x1 इज इक्वल टू x0 प्लस b बाई 2 जो है, अब हम देखेंगे कि रूट x1 और x0 के बीच में है कि x1 और b के बीच में है. तो उसको देखने के लिए फिर हमको fx1 इंटू fx0 ये प्रोडक्ट नेगेटिव है कि नहीं देखना पड़ेगा, या फिर fx1 इंटू fb ये प्रोडक्ट नेगेटिव है कि नहीं देखना पड़ेगा. अगर fx1 इंटू fx0 ये नेगेटिव है, तो फिर हमारा x2 क्या हो जाएगा? x1 प्लस x0 बाई 2, और अगर fx1 इंटू fb नेगेटिव आ गया, तो हमारा x2 हो जाएगा x1 प्लस b बाई 2. क्लियर? क्लियर हो रहा है? यस सर. यस सर. लेकिन एक बात का ध्यान रखो, ये जो दोनों केस है, दोनों केस का x1 लेकिन अलग अलग है. पहला केस में x1 क्या है? x0 प्लस a बाई 2, और दूसरे केस में x1 क्या है? x0 प्लस b बाई 2. तो x1 का वैल्यू लेकिन दोनों में अलग अलग है. इसीलिए
f(x1) भी अलग अलग होगा ना? यस सर। तो दोनों केस का f(x1) अलग अलग होगा, क्योंकि x1 जो है दोनों केस का अलग अलग है। बात समझ रहे हो ना? इसमें कोई एक ही केस वैलिड होगा, दोनों नहीं होगा, कोई एक ही तो वैलिड होगा। क्लियर? यस सर। अब सवाल है कि ये कब तक ऐसे करते रहेंगे? यही प्रोसेस रिपीट होगा, हर वक्त हम बाइसेक्ट करते चले जाएंगे। जब भी हमको कोई दो नंबर मिल रहा है कि अब ये दोनों के बीच में रूट है, उसको बाइसेक्ट कर देंगे। तो स्टेप 5 में इसका आंसर मिलेगा हमको कि हम लोग ऐसा कब तक करते रहेंगे। ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि दो सक्सेसिव रूट सफिशिएंटली क्लोज नहीं हो जाए। तो कितना क्लोज को सफिशिएंटली क्लोज बोलेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स है तो उसका भी कुछ पैमाना होना चाहिए। हाउ क्लोज इज सफिशिएंटली क्लोज, है ना? So we will stop when two successive roots are sufficiently close. The question is how close is sufficiently close? The answer is that we will stop when the modulus of xi minus xi plus 1 is less than epsilon. That means the numerical difference between two successive roots is less than epsilon, where epsilon is a predetermined small positive number. This is decided by the user depending on how much accuracy is desired. If you want more accuracy, you can keep epsilon small or even smaller. जितना छोटा एप्सिलॉन लोगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी होगा। एप्सिलॉन एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ज्यादा छोटा लोगे तो तुमको आइटरेशन भी ज्यादा लगेगा कि नहीं? एक्यूरेसी तो बढ़ेगा लेकिन आइटरेशन भी ज्यादा लगेगा। तो हम एप्सिलॉन को 0.001 ले सकते हैं। अगर तुमको उतना एक्यूरेसी नहीं चाहिए तो 0.01 भी ले सकते हो। ठीक है, इज इट ओके? तो जहां तक तुम्हारा एग्जामिनेशन वगैरह का सवाल है, जो प्रॉब्लम्स हम लोग एग्जामिनेशन वगैरह में देते हैं, उसमें हम नंबर ऑफ आइटरेशंस बता देते हैं। क्योंकि अगर एप्सिलॉन बताएंगे तो तुमको बहुत आइटरेशन लग जाएगा, जब तक कि दो सक्सेसिव वैल्यू का डिफरेंस, न्यूमेरिकल डिफरेंस हो एप्सिलॉन से नीचे नहीं जाएगा। तो उसमें हो सकता है बहुत आइटरेशन लग जाए, उतना टाइम नहीं रहेगा एग्जामिनेशन में। सो फॉर योर बेनिफिट, कंसिडरिंग द टाइम कांस्टेंट, we generally in problems we don't specify epsilon, rather we specify the number of iterations. So that many iterations you have to show and you will get the marks accordingly. ठीक है? तो इसलिए एग्जाम के लिए उतना चिंता नहीं करना है। तो वहां तुमको बहुत ज्यादा आइटरेशन दिखाना नहीं पड़ेगा, 3-4 आइटरेशन ही मांगा जाएगा, उतना ही दिखा दोगे, मार्क्स जाएगा। ठीक है? अब एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये तो चूंकि क्लास है, एग्जामिनेशन नहीं है, तो इसमें हम कुछ ज्यादा ही आइटरेशन करेंगे। ठीक है, तुमको समझाने के लिए। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन cos x minus 1.3x is equal to 0 using बाइसेक्शन मेथड। ये किस तरह का इक्वेशन है? अलजेब्रिक है कि ट्रांसेंडेंटल है? ट्रांसेंडेंटल। वेरी गुड। So our fx is cos x minus 1.3x. ठीक है? Observe that if 0 is equal to 1, which is positive, अगर x के जगह 0 बैठाओगे तो cos 0 तो cos 0 1 हो गया, और उधर 1.3 से x गुना कर दिए तो वो पार्ट 0 हो गया। सेकेंड टर्म इज 0, फर्स्ट टर्म इज 1। Therefore f0 is equal to 1. So f0 is positive, है ना? Now f of 1 will be how much? Cos 1 minus 1.3, इसका वैल्यू होता है -0.76।
जो कि नेगेटिव है. सो f of 1 is negative, f of 0 is positive. Therefore, the product of f of 0 and f of 1 is negative, and hence 1 root in 1. Am I clear? One real root definitely lies between 0 and 1. ठीक है? One real root lies between 0 and 1. So let our first starting case be the mean of 0 and 1, that is half, 0.5. Now what is f of 0.5? f of 0.5 if you calculate function का जो एक्सप्रेशन है cos x minus 1.3x, वहां x के जगह 1.5 बैठाओ. ठीक है? cos x minus 1.3x में x के जगह 0.5 बैठाओ. देखो f of 0.5 कितना आता है. सब लोग कैलकुलेट करो, करके देखो. 0.2776 आता है. आता है कि नहीं? चेक करो. आता है ना, जो कि पॉजिटिव है. अब देखो f ऑफ 0.5 पॉजिटिव है और f ऑफ 0 भी पॉजिटिव है, तो नेचुरली 0 और 0.5 के बीच में तो रूट नहीं है, नहीं ना है. लेकिन f ऑफ 0.5 पॉजिटिव है और f ऑफ 1 नेगेटिव है, तो रूट जो है वो 0.5 और 1 के बीच में है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. The root does not lie between 0 and 0.5, rather it lies between 0.5 and 1. तो हमारा जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा x2 जो होगा, rather x1 जो होगा, x1 हम क्या लेंगे? 0.5 और 1 का मीन ले लेंगे. x1 will be the mean of 0.5 and 1. So mean of 0.5 and 1, that is 0.5 plus 1 by 2, that is equal to 0.75. Now what is f of 0.75? Calculate. देखो माइनस 0.2433 आएगा. कैलकुलेट करके देखो सब कोई. f of 0.75 माइनस 0.2433 आएगा. आ रहा है ना? चेक करके बोलो. आ रहा है. उसी तरह से अब f of 0.5 इंटू f of 0.75 ये नेगेटिव है. ठीक है? नेगेटिव है ना? Yes, sir. ये जो 0.75 है, ये 0.5 और 1 का मीन है. तो अब हमको जानना है कि रूट 0.5 और 0.75 के बीच में है ना 0.75 और 1 के बीच में है, ये जानना है. तो f और 0.75 और f ऑफ 1 दोनों नेगेटिव है, रूट तो वो दोनों के बीच में नहीं हो सकता है. लेकिन f ऑफ 0.75 और f ऑफ 0.5 इसमें साइन का चेंज हो रहा है, क्योंकि f ऑफ 0.5 जो है वो पॉजिटिव है और f ऑफ 0.75 वो नेगेटिव है, इसलिए रूट 0.5 और 0.75 के बीच में है. क्लियर? तो हम x2 को ले लिए. 0.5 प्लस 0.75/2, उसका वैल्यू आता है 0.625. अब उसी तरह से देखो f ऑफ 0.625 कितना होता है? वो आएगा माइनस 0.00153, जो कि नेगेटिव है. क्लियर? तो देखो f ऑफ 0.625 नेगेटिव है और f ऑफ 0.5 पॉजिटिव है, तो इसलिए रूट जो है वो 0.5 और 0.625 के बीच में है. The root lies between 0.5 and 0.625 because the function is changing its sign. The root does not lie between 0.625 and 0.75 because the value of the function at both these points are negative. है ना? f of 0.625 and f of 0.75 both are negative, so root does not lie between them, rather
rather the root lies between 0.5 and 0.75. Sorry, 0.5 and 0.625. 0.5 और 0.75 के बीच में तो रूट है ही, लेकिन अब हमको आगे बढ़ना है तो हम और थोड़ा बाइफरकेट कर दिए उसको कि रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.625, और थोड़ा प्रिसाइज। धीरे धीरे हम अपना सर्च स्पेस को नैरो करते जा रहे हैं ना, वी आर नैरोइंग आवर सर्च स्पेस। नाउ वी हैव गॉट द रिजल्ट दैट द रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.625, तो उसका मीन ले लिया जाए। उसका मीन होता है 0.5625। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ 0.5625? इट कम्स टू 0.1146। कैलकुलेट करके देखो, एफ ऑफ 0.5625 कम्स आउट टू बी 0.1146, जो कि पॉजिटिव है। तो इस वजह से चूंकि 0.625 में वैल्यू फंक्शन का नेगेटिव है और 0.5625 में पॉजिटिव है, इसलिए रूट जो है ये दोनों के बीच में है। तो फिर ये दोनों का मीन ले लो, तो x4 क्या हो गया? x4 हो गया 0.5625 प्लस 0.625 डिवाइडेड बाई 2, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.59375। ठीक है, 0.59375। Now again you calculate the value of the function at 0.59375, it comes to 0.22870। कैलकुलेट करके देखो, आता है ना? f of 0.59375 आता है 0.22870। और उसके बाद फिर तुम देखो कि f of 0.59375 इंटू f of 0.625 वो नेगेटिव है, क्योंकि f of 0.59375 पॉजिटिव है और f of 0.625 नेगेटिव है। तो रूट जो है ये दोनों के बीच में है, तो इसका मीन ले लिया जाएगा। 0.59375 और 0.625 का मीन ले लेंगे, तो हमारा रूट का अप्रोक्सीमेशन हो गया x5 इज इक्वल टू 0.609375। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करो। व्हाट इज f ऑफ 0.609375? वो आता है पॉजिटिव, आता है 0.0278 आता है। तो इस वजह से हमको ये मिला कि 0.609375 और 0.625 ये दोनों में, ये दोनों वैल्यू के बीच में साइन चेंज हो रहा है, तो रूट जो है ये दोनों के बीच में है। तो ये दोनों का मीन को हमारा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम ले लेंगे x6। तो 0.609375 और 0.625, इसका मीन कितना आता है जी? इसका मीन आता है 0.6171875 आता है ना। तो इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करो, f ऑफ 0.6171875, इसका वैल्यू कितना आता है? इसका वैल्यू आता है 0.1316, जो कि पॉजिटिव है। तो f ऑफ 0.61711875 एंड f ऑफ 0.625 इसको प्रोडक्ट करेंगे तो फिर नेगेटिव आएगा, क्योंकि पहला वाला पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव है। है ना, f ऑफ 0.625 नेगेटिव है, ये हम पहले निकाल चुके हैं। उसका वैल्यू आता है -0.00153, है ना। ये देखो यहाँ पे जहाँ हम कर्सर घुमा रहे हैं, देखो यहाँ, ये हम पहले निकाल चुके हैं, ये नेगेटिव है। और ये 0.6171875 इसका वैल्यू आया 0.1316, ये पॉजिटिव है। तो एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, इसलिए रूट जो है ये दोनों के बीच में है। ठीक है, 0.6171875 और 0.625 दोनों के बीच में रूट है। फिर इसका मीन ले लेंगे, तो इसका मीन लेंगे तो x7 मिलेगा हमको, ये दोनों का मीन लेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.62109375। यहाँ पर वैल्यू निकालो, फिर पॉजिटिव आया
इसका मतलब रूट जो है इसके और 0.625 के बीच में है, ठीक है। तो बीच में है तो फिर इसका मीन ले लो, इसका मीन आएगा 0.62304687 और वहां पे फंक्शन का जो वैल्यू आता है वो फिर पॉजिटिव आता है। इस वजह से वो वैल्यू और 0.625 ये दोनों के बीच में रूट है। 0.62304687 एंड 0.625 ये दोनों के बीच में रूट है। फिर उसका मीन ले लो, तो उसका मीन आएगा 0.62402347। इसी तरह से तुम चलते रहोगे और भी अप्रोक्सीमेशन करते रहोगे, तुम्हारे लिए होमवर्क रहा। फाइनली तुम पाओगे कि 4 डिजिट तक रूट का जो अप्रोक्सीमेशन आएगा 4 डिजिट तक वो 0.6242 आएगा, ठीक है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहा। हम 3 डिजिट तक लाए हैं तो 3 डिजिट तक 0.624 है। तुम एक कैलकुलेशन और करके हमको बताओ, इस वैल्यू पे 0.62402347 इस पे इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू कितना आता है, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है? कैलकुलेट करके बोलो तो। फंक्शन है cos x माइनस 1.3x, वहां x के जगह में 0.62402347 बैठाओ, कितना आ रहा है बोलो, कैलकुलेट करके बोलो। कितना आ रहा है जी? पॉइंट 0.62402347 इस वैल्यू पे फंक्शन का कितना वैल्यू आ रहा है? सर 0.18871102227 मतलब पॉजिटिव आया ना? यस सर पॉजिटिव आया। हाँ, और 0.625 पे तो नेगेटिव आया था। यस सर। तो अभी तो तुम जो वैल्यू बोले और 0.625 ये दोनों के बीच में है रूट। यस सर। तो दोनों का मीन कितना होता है? सर 0.4068555114। नहीं, कुछ गलती की है। तुम्हारा वो वैल्यू ही गलत निकाले हो, ऐसा कैसे होगा? तो 0.624 तक आ गए है ना, एक्चुअल वैल्यू 0.6242 है, तो वहां से भागेगा थोड़ी। तुम 0.624023437 इस वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू कितना आता है वो कैलकुलेट करो। वो हमको सही हमको लगता है तुम कैलकुलेट नहीं किए हो। पॉइंट 6 समथिंग आएगा सर मेन 0.62451171185। हाँ यही सही होगा। और उसके साथ 0.625 का मीन लो तो मेन के साथ मेन मतलब मेन के साथ फिर से 0.625। उसमें तो सर पता ही नहीं है मेरे को कि वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, हम चेक ही नहीं किया। नहीं, ये जो वैल्यू है 0.624023437 उसमें पॉजिटिव है सर। इस वैल्यू को बैठाओ cos x माइनस 1.3x, वहां x के जगह ये वैल्यू बैठाओ। यस सर, उससे उससे वही आ रहा है 1.8 मतलब 0.188 करके आ रहा है, पॉजिटिव ही है वो। 0.
188. Sir, 0.18871022227. हाँ ऐसा नहीं होगा। अच्छा, वैसा अगर होता भी है हो सकता है बाद में वो फिर चेंज हो जाए। एक काम करो ना, हाँ, ये 0.62402343 इसको अगर डालते हो तो फंक्शन का वैल्यू कितना आता है? 0.624 डालने से कितना आता है बताओ ना, बाकी डिजिट छोड़ भी दो। इसको नीचे हम लोग थोड़ा रफ में देख रहे हैं। Sir, बताओ। 0.188. 0.188 है ना? 188. Yes. हाँ, उसके साथ अगर 0.625 का मीन लेते हो तो कितना आता है? Sir, 0.406 बोल के कुछ आ रहा है. Positive. एफ ऑफ एफ ऑफ 0.62। अच्छा, पूरा ही बोलो तो, अगर पूरा ही वैल्यू लेते हैं 6240234437, अगर ये पूरा लेते हैं तो कितना आया था? 0 पॉइंट ये कितना आया था एक बार बताओ तो। अगर ये सारा डिजिट लेते हैं 0.6240234437 तो कितना आता है फंक्शन का वैल्यू? Sir, 0.18871. 1 0.18871. और भी डिजिट है? हाँ सर, 0.2227. 0.227। Yes sir, 0.2227. अब उतना का जरूरत नहीं है, इतना ही रहने दो। 0.18871 ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव है। नो सर सॉरी, वो जो पहले बता रहे थे वो ये सर वो कैलकुलेटर डिग्री पे सेट था, वो रेडियन पे करने पे उससे छोटा आ रहा है। 0.00034। 0.34 तो वो भी पॉजिटिव है। यस सर। तो रूट जो है अब हमको जानना है कि रूट 0.623 ये वाला जो टर्म है ना,
ठीक है, देखो ये सही है ना 0.00034। तो यहाँ पर तुम देखो कि 0.623046.875 और 0.625 ये दोनों का मीन लेके हम अप्रोक्सीमेशन ये किए थे। तो अब हमको जानना है कि रूट जो है वो ये 0.623046.875 और 0.62402347 ये दोनों के बीच में है ना, 0.62402347 और 0.625 के बीच में, ये दोनों के बीच में, यही ना जानना है। यही ना जानना है जी। यस सर। हाँ, तो ये 0.62402347 पे तुम बोले कि फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है ना? यस सर। और एक जो लंबा वैल्यू है 0.623046.875, यहाँ पर भी तो वैल्यू फंक्शन का पॉजिटिव ही आया था। 0.002143 पॉजिटिव आया था। इसका मतलब ये दो जो लंबा वैल्यू है 0.6 वाला, इसके बीच में रूट नहीं है। यस सर। रूट किसके किसके बीच में है? 0.62402347 ये और 0.625 ये दोनों के बीच में है। है ना? यस सर। तो ये दोनों का जो मीन होगा वो हमारा अगला अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। और वो कितना होता है सर? 0.62451172। नहीं, 0.62402347 ये वैल्यू और 0.625। यस सर। 0.62451172। 0.6245। हाँ बोलो 0.62451171 0.6245 117 117185। यही हमारा अगला अप्रोक्सीमेशन होगा। यस सर। यस सर। ऐसे करके चलते रहोगे तो फाइनली तुम 0.6242 पे पहुंचोगे। यस सर। है ना? 4 प्लेस ऑफ डेसिमल तक। यस सर। तब मोस्ट प्रोबेबली इसमें नेगेटिव आ जाएगा एंड देन इन दोनों का मिड जो होगा वो हम लोग का आंसर है। हाँ, ये तुम लोग कर लेना। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर भी रुक जा सकते हैं। ये जो देखो पॉइंट हम यहाँ पर क्या रुक गए थे, क्योंकि इसके पहले वाला जो वैल्यू था, देखो इसके पहले वाला जो वैल्यू था ना वो क्या था? x8 क्या था? x8 था 0.623, है ना? आगे का डिजिट छोड़ दो। x8 जो था 0.623 और x9 आया 0.624, तो 0.001 का ही ना डिफरेंस हुआ। हुआ कि नहीं? इसीलिए हम यहीं पर रुक गए थे। तुम चाहे तो और आगे बढ़ सकते हो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहा। ठीक है, समझ गए? तो मेथड तो समझ गए ना? हम यहाँ क्यों रुक गए थे समझ में आया? क्योंकि देखो इधर देखो, x8 देखो, x8 क्या आया था? 8th इटरेशन क्या आया था? x8 जो आया था 0.623 समथिंग। ये आगे का डिजिट भूल जाओ, 0.623 तक आया था ना? और x9 क्या आया? 0.62402 समथिंग। अब तुम पूरा डिजिट ही लो ना, पूरा डिजिट ही लो, तो x9 और x8 के बीच का न्यूमेरिकल डिफरेंस बताओ तो कितना होता है? पॉइंट 001 से कम आएगा मेरे ख्याल से। समझो कि हम एप्सिलॉन जो है 0.001 से हम एप्सिलॉन 0.001 लिया, ऐसा मान के चलो। तो x8 और x9 के बीच का जो डिफरेंस है
वो एप्सिलॉन से शायद कम आएगा, देखो इसी वजह से हम रुके थे, लेकिन तुम आगे बढ़ सकते हो। तो 4 प्लेस ऑफ डेसिमल तक, यस सर, कम है, 001 से कम है सर। हाँ थोड़ा सा कम है ना। अगर ये वाला वैल्यू 0.623 होता और ये 0.624 होता तब एग्जैक्टली 0.001 होता, लेकिन ये थोड़ा सा 0.623 से थोड़ा सा ज्यादा है और ये भी 0.624 से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ये 0.623 से जितना ज्यादा है ये 0.624 से उतना ज्यादा नहीं है। इस वजह से डिफरेंस लेने पे 0.001 से थोड़ा सा नीचे हो जा रहा है और यही कारण है कि हम रुक गए थे। अब समझ में आया? Is it clear? यस सर। हाँ, समझो कि हम एप्सिलॉन 0.001 लेके काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम x8 और x9 में जो डिफरेंस आया वो उसका न्यूमेरिकल डिफरेंस एप्सिलॉन से कम हो गया, इसलिए हम यहीं पे रुक गए थे। लेकिन तुम चाहे तो और आगे बढ़ सकते हो, और आगे बढ़ोगे, तुमको अगर मन किया हम 4 प्लेस ऑफ डेसिमल तक जाएंगे, देखेंगे क्या आता है, तो तुम 0.6242 तक पहुंच सकते हो। मान लो कि तुम एप्सिलॉन को 0.0001 ले लिए, है ना, थोड़ा और कम कर दो, एक्यूरेसी को और बढ़ाओ, तो तुम यहां तक पहुंच सकते हो, 0.6242 तक पहुंच सकते हो। तो बाइसेक्शन मेथड समझने में कुछ किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, 2-4 मिनट है, नहीं तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। इसके बाद न्यूटन रैप्सन मेथड आएगा, वो हम आज कराना नहीं चाह रहे हैं, नेक्स्ट डे कराएंगे। इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन कई तरह का हो सकता है, एक हो सकता है कि एप्सिलॉन दे दिया जाए, एक हो सकता है नंबर ऑफ आइटरेशंस दे दिया जाए, एक हो सकता है कि अप टू सर्टेन प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स वो दे दिया जाए। जैसा क्वेश्चन रहेगा वो देख के आंसर करोगे, ठीक है? बना लोगे ना क्वेश्चन बाइसेक्शन मेथड पे? मेथड समझ गए ना जी? यस सर। तो किताब से अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके सॉल्व करोगे, अलजेब्रिक भी सॉल्व करो, ट्रांसीडेंटल भी सॉल्व करो, ठीक है? Try to solve different types of problems, that will give you good practice. और कोई एल्गोरिथम भी डेवलप करने का कोशिश करो, प्रोग्राम भी लिखने का कोशिश करो, जिसमें वो प्रोग्राम तुमको बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करके सॉल्यूशन दे देगा। ऐसा प्रोग्राम भी डेवलप करने का कोशिश करो। एग्जाम में तो तुमको मैनुअली ही करना होगा, बट फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, if you do numerical analysis lab, then you will be required to write a program to solve an algebraic or transcendental equation using bisection method. सर हाँ, एक्सक्यूज मी सर, ये एक और बंदे को ऐड करना है सर। ऐड करना है? हाँ सर। ये लोग सब लेट रजिस्ट्रेशन वाला केस है क्या? हाँ सर। अब तो रजिस्ट्रेशन का डेट भी बढ़ गया ना। हाँ सर। लेकिन क्लास सबको अटेंड करने बोलो, क्योंकि नोटिस आया हुआ है, क्लास में कोई रोक नहीं है, एवरीबॉडी Yes, शुड अटेंड
hours irrespective of the registration, है ना? तो don't Yes, miss sir. class. I also don't want that you should miss classes. क्लास कोई मिस नहीं करो, सब क्लास अटेंड करो. एडिशन हम ट्यूशन करते रहेंगे. जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करोगे तभी तुमको माइक्रोसॉफ्ट वाला वो आईडी मिलेगा ना, और वो जैसे ही मिलेगा हम ऐड कर देंगे. बोलो. Sir, roll number 157. 0157. नाम Ayush Raj. आयुष राज ऐड नहीं है नहीं है सर. अभी. सर हो और कॉमन ईमेल आईडी बनाए सर, ए सेक्शन और बी सेक्शन का एक. कॉमन आईडी में हम भेजे थे मेल, वो तो गया नहीं. नहीं सर, फिर अब बनाए. अभी एक और कॉमन आईडी बनाए थे सर. कर रहे हो, एक मिनट. हाँ सर. बनाए हो तो बहुत अच्छा है, तो नोट कर लेते हैं. तो दो मेल नहीं भेजना पड़ेगा, एक ही मेल भेजेंगे. इसमें भी एक बार भेज के ट्राई कर लेंगे. कहाँ लिखे थे?